गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सिंह आपका वेदांत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वेलकम करता हूं। जैसा कि अपन अपने प्रीवियस चैप्टर जो था अपना 8 चैप्टर था उसके अंदर अपन स्टडी कर रहे थे हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन का अपन ने नोमेनक्लेचर फिनिश कर दिया था और उसके अंदर अपन ने इंक्लूड किया था 3 सिस्टम्स। फर्स्ट था ट्रिवियल सिस्टम, सेकंड था डेरिवेटेड सिस्टम एंड थर्ड था अपने पास आईयूपी सिस्टम। तो नोमेनक्लेचर का जो बेसिक वर्क है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज अपन जो करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और वो टॉपिक है अपने पास एलोट्रॉप्स। आज अपन करने जा रहे हैं बेटा एलोट्रॉप्स आज अपन करने जा रहे हैं। तो एलोट्रॉप्स का मीन क्या होता है? द मीन ऑफ एलोट्रॉप्स इज different forms of element. They are different in physical property. Okay, so मैंने आपको बताया कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। अपने पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। सो द एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन फॉर्म्स एंड डिफरेंट इन फिजिकल कंडीशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। It means the elements which have different form and different in physical property. The element which have different forms and different in physical property are called allotropes. And this property is called एलोट्रोपी, और एक वर्ड और है उसको अपन बोलते हैं एलोट्रोपिज्म। ओके, सो अपन ने क्या किया, अपन एक वर्ड है एलोट्रॉप्स क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। इट मीन्स फॉर्म्स का मीन होता है उसके टाइप्स, उसके रूप, and different in physical property. Such types of elements are called allotropes, and this property is called allotropy and allotropism. Okay, बात करें इसके एग्जाम्पल के, let's we talk about the example of allotropes. Okay, so what is the example of allotropes? You know, carbon also present in different forms. Carbon also present in different forms. Okay, so let's discussion about allotropes of carbon. Now we will move on allotropes of carbon, because we know that carbon present in our nature in different forms. So we have to read about allotropes of carbon. So what is the type of allotropes of carbon? Allotropes of carbon are two types. First is crystalline allotropes, and second is non-crystalline allotropes. Okay, simply the allotropes of carbon we divide in two parts. First is crystalline allotropes and second is non-crystalline allotropes. Okay, crystalline allotropes, what do you mean by crystalline allotropes? Crystalline allotropes, the carbon in which carbon atom attach with certain bond and have
certain geometry. Okay, so the crystalline allotropes in which the carbon carbon attach with certain bond and certain geometry, such type of compound is known as crystalline allotropes of carbon. But those compound who does not passes certain bond between the carbon and do not have certain geometry, these are known as non-crystalline allotropes of carbon. So we have to focus on crystalline allotropes. So इसका मीनिंग क्या हुआ कि crystalline allotropes के अंदर कि कार्बन कार्बन के मिड में सर्टेन बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा और उसके अंदर उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, फिक्स होगी, वो सर्टेन होगी, जिसको अपन इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन. नाउ हाउ मच crystallines of allotropes present in our course? So we have three types of crystalline allotropes. First is diamond, second is graphite, and third is fullerene. Okay, so जिनकी ज्योमेट्री सर्टेन होती है उनको अपन क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं, और ये थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड इज फुलरीन. ओके, सेम एज द known crystalline allotropes also have various types. First is coal, COAL, coal. Second is coke. Third is charcoal, animal charcoal, wood charcoal, carbon, and gas carbon. Okay, so now we understand about the allotropes of carbon are two type: crystalline allotropes, it means certain geometry, and non-crystalline allotropes, it means the geometry is not certain in these compounds. Again, crystalline allotropes of carbon divide in three parts. First is diamond, second is graphite, third is fullerene. Same as the known crystalline allotropes of carbon divide in several parts. First is coal, second is coke, third is charcoal, fourth is animal charcoal, wood charcoal, carbon, and gas carbon. Okay, so dear students, we know that the crystalline allotropes of carbon are three types: diamond, graphite, and fullerene. Okay, in our course we have a crystalline allotropes of carbon. First is diamond. Okay, let's talk about the diamond. What is the diamond? First, start with the structure of diamond. Structure of diamond is tetrahedral. It means कार्बन कार्बन जो अटैच होते हैं, ओके, कार्बन कार्बन जो अपना अटैच होगा, ओके, वो इस तरह से अटैच होगा कि ईच कार्बन अटैच विद अनदर कार्बन. सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का जो अपने का स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल. ओके, नेक्स्ट डायमंड इज अ purest
form of carbon. Diamond is the purest form of carbon. Next, okay, it is bad conductor of electricity. It means why diamond is a bad conductor of electricity? Because in the structure of diamond, the each carbon attach with another carbon. So no one electron is free. ओके, सो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायमंड बैड कंडक्टर. नेक्स्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस in the world. Hardest substance in the world, because diamond have a strong covalent bond in it. Due to a strong covalent bond, diamond is a hardest substance in the world till date. Next, the bond length between carbon and carbon, which is 1.54 angstrom. The melting point of diamond is Kelvin, 3848 Kelvin, and the density of it, which is 3.51. It is, the diamond is transparent, colorless, and it is synthesized by pure carbon. Yes. So अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? अपन कर रहे हैं डायमंड. ओके, डायमंड क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन का एक फॉर्म्स है. ओके, इसके ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन कर रहे हैं. सबसे फर्स्ट आपको रिमेंबर रखना है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है. आपको याद रखना है डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल. कैसा है? टेट्राहेड्रल. इस टेट्राहेड्रल का मीन होता है कि कार्बन से क्या होता है? 4 वे से अटैच होता है. अगर मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे मान लो ये मेरे हाथ में यहाँ पे कार्बन है. ओके, तो एक यूँ हो जाएगा, जैसे ये एक अप कार्बन हो जाएगा, फिर एक यूँ हो जाएगा, एक ऐसे, 1 2 3 4. ओके, सो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर होता है बेटा टेट्राहेड्रल. आप इसको देखो, 3 डायमेंशन होता है ये. 3 डायमेंशन, ऐसे इस तरह से अटैच होता है. तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, और ये कार्बन की क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है. ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. व्हाई दिस इज इलेक्ट्रिसिटी बैड? बिकॉज कार्बन जो अटैच होता है उनके मिड में एक भी बॉन्ड फ्री नहीं होता है. जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, ओके, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, बॉन्ड फ्री नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी. सो कार्बन अटैच विद अनदर कार्बन, so no one electron is free. That's the reason being diamond is a bad conductor of electricity. It is hardest substance in the world.
टिल दैट आज के डेट में जो डायमंड है सबसे हार्ड सब्सटेंस है। क्यों है? बिकॉज इस डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की रीजन की वजह से ये जो डायमंड है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कार्बन कार्बन के मिड में 1.54 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस होता है। इट मीन्स ये जो कार्बन कार्बन के मिड की जो लेंथ है, ये लेंथ है, इसके मिड में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रम होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3848 केल्विन, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.51 होती है। डायमंड देखने में कैसा है? ट्रांसपेरेंट होता है, कलर लेस होता है, और इसको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं प्योर कार्बन से एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। So these are the special property of diamond. Let's talk about the uses of diamond. Okay, the diamond used in glass cutter. Okay, second है machines in rock and stone cutting. Making needle of phonogram. Next, making needle of phonogram, and next making precious ज्वेलरी। सो डायमंड के यूज कहाँ कहाँ करते हैं अपन? ग्लास कटर में जो ग्लास आते हैं अपने को, उनको काटने के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं उसके अंदर डायमंड का यूज होता है। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, स्टोन्स होते हैं, उनको कट करने के लिए जो मशीन्स यूज लेती है, उन मशीन्स में डायमंड का यूज होता है। फोनोग्राम होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस फोनोग्राम की जो नीडल है वो भी किससे बनती है? डायमंड से बनती है। एंड मैकिंग प्रीसियस ज्वेलरी, यू नो वेरी वेल कि जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज है, उसके अंदर डायमंड का यूज होता है। सो वी नो, अपन ने जाना कि डायमंड का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है और डायमंड के यूजेस क्या है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि डायमंड का यूज करेंगे ग्लास कटर में, मशीन्स इन रॉक्स एंड स्टोन कटिंग के अंदर, मैकिंग निडल ऑफ फोनोग्राम एंड मैकिंग प्रीसियस ज्वेलरी। सो ये था अपने पास एक डायमंड का प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेस। अब अपन देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? टेल मी। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इट मीन्स कार्बन कार्बन से अटैच रहता है, एक भी इलेक्ट्रॉन, एक भी बॉन्ड फ्री नहीं होता है। ओके, सो देखो मैं एक डायमंड का स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से अपन एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर ऐसे ही अपन नीचे लाएंगे और इनका दूसरा रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अपन फिर से यही चीज़ करते जाएंगे। ओके, आप लोग जब इसको 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा। यस,
कुछ इस तरह से अपने पास डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। ये 3D होता है। कैसे स्ट्रक्चर होती है? 3D स्ट्रक्चर्स होती है ये वाली जो अपन बना रहे हैं। मैंने क्या किया, एक बेंजीन रिंग बनाया, फिर दूसरा बेंजीन रिंग बनाया, इस तरह से मैंने बेंजीन रिंग ऐड करता गया, और फिर जैसे मेरा एक ब्लैक कलर का शीट कंप्लीट होता है तो उसके अंदर मैंने दूसरा शीट एज इट इज क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। होप आपको बनाना आ गया होगा, और आप इसको फेयर में एक दो बार और रिपीट करोगे तो आपसे ये अच्छा ब्यूटीफुल बनने लग जाएगा। तो रिसेंटली अपन ने फिनिश किया डायमंड। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो टॉपिक है एलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, विच इज नंबर 2 एंड विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट। अब मैं पूछूं कि ग्रेफाइट जनरली आप जानते हो क्या? हाँ, आप जानते हो। बेसिकली आप जो पेंसिल यूज लेते हो, उस पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का स्मूथ स्लिपरी ब्लैक कलर का जो लीड होती है, वो लीड किसका एग्जाम्पल है? ग्रेफाइट। वही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक वर्ड है, ग्राफो। ग्राफो, इस ग्राफो वर्ड से बना है, और इस ग्राफो वर्ड का मीनिंग होता है राइटिंग। व्हाट इज द मीनिंग? राइटिंग। ग्राफो, which is a Latin name, and graphite, the name come from grapho, and meaning of grapho in English which is writing। और writing जो अपन यूज करते हैं वो अपन किस में करते हैं? पेंसिल में करते हैं। पेंसिल में करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, जैसा अपन ने डायमंड का स्ट्रक्चर किया था, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा था? तो डायमंड का स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल। ऐसे ही देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल भी है और टेट्राहेड्रोन भी होता है। दोनों वर्ड अपने को बुक में मिलेंगे। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? तो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल। और ये अपने को रिंग की फॉर्म में मिलती है, जो एक के ऊपर एक अरेंज होती है। जो एक के ऊपर क्या होती है? एक अरेंज होती है। सो फर्स्ट इज क्लियर, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल। सेकंड, in the structure of graphite, carbon attach with another carbon, and this structure, in the graphite structure, have one double bond to fulfill its वैलेंसी। ओके, सो कार्बन की जो आपके पास ग्रेफाइट है, उसकी हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है? कार्बन से अटैच होता है, बट उसके अंदर कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए अपने को क्या मिलता है? एक डबल बॉन्ड मिलता है। आपको पता है अपने पास 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। फिर देन वीक बॉन्ड कौन है? डबल बॉन्ड। और उससे भी वीक कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। नंबर 3, ओके, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल रिंग के अंदर कार्बन का जो अटैचमेंट है उसके अंदर, ओके, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। That's the reason being graphite is a conductor of electricity. Next, कार्बन की
ये जो ग्रेफाइट फॉर्म्स है इसके अंदर जो हेक्सागोनल रिंग्स होती है उनकी डिस्टेंस एक दूसरे से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बॉन्ड भी कैसा होता है, वीक होता है। और वीक बॉन्ड होने की वजह से ड्यू टू वीक बॉन्ड एंड मोर डिस्टेंस between two, more distance between two rings of graphite one ring can slip over the other ring. That's why graphite is smooth. That's the reason being graphite is a smooth. Next, it is black, opaque, smooth, slippery substance. सो ये अपने पास जनरल प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट का। सो एक बार फिर से अपन इसका ब्रीफ करते हैं। ग्रेफाइट मीन्स ग्राफो। ग्रेफाइट कम फ्रॉम ग्राफो विच मीनिंग इन English which is writing and we use in pencil. Next, the structure of graphite is hexagonal. It means ring shape में होती है, और ये जो rings होती है एक के ऊपर एक अरेंज होती है। नेक्स्ट, नंबर 2, one double bond present in the graphite structure to fulfill its valency. ओके, जो कार्बन की जो अरेंजमेंट है ग्रेफाइट के अंदर, तो उसमें कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रेफाइट के अंदर। और कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, एंड फ्री होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। दैट्स द रीजन बीइंग ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, ड्यू टू वीक बॉन्ड एंड मोर डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग्स। ओके, तो वीक डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इसकी वजह से, और रिंग्स जो होती है उनके मिड में गैप भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो ग्रेफाइट की वन रिंग होती है वो स्लिप कर जाती है दूसरी रिंग के ऊपर। दैट्स द रीजन बीइंग ग्रेफाइट कैसा होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है, स्मूथ। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कैसा है, ब्लैक इन कलर, opaque, स्मूथ एंड स्लिपरी सब्सटेंस। ओके, सो ये सारे अपने क्या किए, ग्रेफाइट का अपने इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो अपने की, और इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 2.41। इसका जो डेंसिटी है दैट इज 2.41। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। नाउ ग्रेफाइट का यूज अपन कहाँ करते हैं, एक यूज तो आप लोग जानते ही हो, वो कहाँ है, ग्रेफाइट यूज इन मेकिंग पेंसिल। फर्स्ट यूज, वेरी सिंपल। सेकेंड इज ग्रेफाइट यूज एज ल्यूब्रिकेंट। ग्रेफाइट का यूज करते हैं अपन एज अ ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट का मीन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अपन जनरली जो भी ऑटोमोबाइल्स है या घर के अंदर कुछ पार्ट्स है उसके अंदर अपन ग्रीस यूज लेते हैं, ग्रीस। तो जैसे ग्रीस यूज होती है ऐसे ही ग्रेफाइट यूज होता है एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो ग्रीस आपका कैसे वर्क कर रहा है, ल्यूब्रिकेंट के जैसे वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज इन आयरन मेटल। ग्रेफाइट यूज इन polish on
आयरन मेटल. नेक्स्ट, in nuclear reactor as a moderator. सो ग्रेफाइट का अपन यूज करेंगे. और फर्स्ट लास्ट वन इज यूज एज अ मैकिंग इलेक्ट्रोड्स. सो ये कुछ यूजेस है अपने पास. किसके हैं? ग्रेफाइट के यूजेस है. सो दीज यूजेस आर मैकिंग पेंसिल, मैकिंग lubricant and polish on iron metals. न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करेंगे एज अ मॉडरेटर. मॉडरेटर का यूज होता है, मीन होता है कि वो क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में और उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपन मॉडरेटर की फॉर्म में ग्रेफाइट का यूज करते हैं. एंड मैकिंग इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स इट मीन्स आपने पेंसिल से देखे होंगे, जब आपने उसको ब्रेक किया होगा तो उसके इनसाइड क्या होता है, उसके इनसाइड में एक आपने देखा होगा एक लीड होती है. वो लीड क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड है. सो अपन ने जाना कि ग्रेफाइट के यूजेस कौन से हैं. पेंसिल है, लुब्रिकेंट है, पॉलिश ऑन आयरन मेटल है, न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर है एंड मैकिंग इलेक्ट्रोड्स. ओके, फिर से ग्रेफाइट कम फ्रॉम ग्राफो which is been in writing and used in pencil. Second, graphite structure is hexagonal rings, one double bond present in the structure of graphite which is fulfill the valency of carbon. The carbon attach with another carbon and one electron free in the graphite. Due to this the graphite is a good conductor of electricity. Due to weak bond and more distance between two rings of graphite, one ring can slip over the another ring. That's the reason being graphite is a smooth substance. Next, graphite is a black substance, opaque, smooth and slippery. Next, the special density of the graphite is 2.41. Uses of graphite is pencil, lubricant, polish on iron, metal, nuclear reactor as a moderator and making electrodes. सो ये अपन ने स्टडी किया कि ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी क्या है और ग्रेफाइट का अपन यूज कहाँ पे करते हैं. जैसे अपन देखा डायमंड का स्ट्रक्चर था, तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहेड्रल था. ऐसे ही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल रिंग्स में है. जो डायमंड था वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर और ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर. क्योंकि डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते और इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं.